जय हिंद दोस्तों, मैं नाजिश फराज और आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ा हूं एक बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले आपको ये बताता चलूं कि मैंने एक न्यूज़ कवर किया था खिदरपुर के इलाके से स्विगी से रिलेटेड, जहां कुछ स्विगी बॉयज़ जो थे, जो डिलीवरी बॉयज़ थे, उन लोगों ने स्ट्राइक किया था वो अपने पे आउट को लेकर के। लेकिन अभी मैं फिर से स्विगी बॉय के साथ खड़ा हूं, लेकिन यहाँ मामला कुछ और है। मामला कुछ इस तरह से सामने आ रहा है कि इस तरह का माहौल बन गया है, जो स्ट्राइक कर रखे हैं कुछ डिलीवरी बॉयज़ अलग अलग जोन में, और जिन्होंने स्ट्राइक नहीं कर रखा है वो लोग आपस में ही भिड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है, ना ही स्विगी कंपनी ले रही है, ना ही कोई प्रशासन ले रहा है, ना ही ये अपने आप को संभाल पा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इसकी जानकारी लेंगे। यहाँ हमारे साथ स्विगी के कुछ डिलीवरी बॉयज़ हैं सेंट्रल जोन के, उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला क्या चल रहा है, क्यों ये लोग परेशान है, वापस से यहाँ पे सारे लोग क्यों जमा हैं। सबसे पहले भाई आप अपना नाम बताएं, अपनी नामটা বলুন আগে। দেখুন, মানে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার স্বার্থে আমি আমার কাজের ক্ষেত্রে নামটা আমি অ্যাভয়েড রাখতে চাই। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনি কি অসুবিধা হচ্ছে, কি ব্যাপারটা কি, আপনি কেন সবে এখানে জামা হচ্ছে? অসুবিধা হচ্ছে আপনাদের চ্যানেলকে প্রথমেই মানে খুবই অভিনন্দন আমাদের এই যে মানে সমস্যা আছে, এই সমস্যায় আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য, এবং চ্যানেলের তরফ থেকে আমাদের যে মানে গ্রাহক আছে তাদেরকে আমরা খুবই দুঃখিত তাদের কাছে যে আমরা তাদেরকে সার্ভিস দিতে পারছি না। এর কারণ হিসাবে আমাদের কাছে উঠে আসছে যে কলকাতা সুইগি একটা অনেক বড় মানে এরিয়া, ঠিক আছে, এটাই এরিয়াটাকে কয়েকটি জোনে ভাগ করা আছে। তো আমাদের জোনটা সেন্ট্রাল জোন, তো সেন্ট্রাল জোন মানে বাদ দিয়ে যে অন্য অন্য জোনগুলো আছে সবাই নিজেদের দাবি দেওয়া রেখে মানে ধর্মঘটে আছে এখনও পর্যন্ত টিল ডেট। তো সেই জন্য আমরা কাজ করছি, তো সুইগি আমাদেরকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে, কিন্তু যে কাজের পরিমাণটা, যে জন্য আমরা কাজ করতে এসেছি রোজগারের উদ্দেশ্যে, যে রোজগারটা আমরা আগে করতাম আফটার ধর্মঘট পরবর্তী সময়েতে সেটা মানে 50% নেমে এসেছে, এবং আমরা সেই জোনগুলোতে যেতে পারছি না। যে কোনো কারণে হোক, সেখানে বিভিন্ন ঘটনার কারণে বা অন্য বাধা বিপত্তি অনেক কিছু আছে, সেগুলো আমি খুলে বলছি না জিনিসটা। তো সেজন্যে আমাদের সেই সব জোনে যেতে মানে দেওয়া হচ্ছে না, বা সুইগি থেকে অর্ডারও আসছে না। এসব কারণে আমরা সেন্ট্রালে যত সমস্ত সুইগি রাইডার আছে তারা আজ একত্রিত হয়েছি এখানে, মানে সর্বসম্মতি ক্রমে, কাউকে ফোর্সফুলি নয়, জোর করে নয়, যে যা এসেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। এইভাবে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে আমরা ওদের সঙ্গে মানে কোনো আমাদের ক্লাস নেই, ঠিক আছে, কোনো আমাদের সঙ্গে বিরোধ নেই। আমরা কাজ আজ থেকে আর করব না, কেন আমাদের পোষাচ্ছে না। যে জন্য আমরা কাজ করতে আসি সে রোজগারে আমাদের পোষাচ্ছে না, এজন্য আমরা সবাই মিলে সর্বসম্মতিক্রমে এই মানে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। যে কি ব্যাপারটা কি হচ্ছে এটা সেটা এক্সপ্লেন করবেন আপনি? হ্যাঁ, এক্সপ্লেনের ব্যাপার হচ্ছে এটাই যে আমাদের দেখুন কলকাতা অনেক বড় জোন, ঠিক আছে, এই জোন আমরা সেন্ট্রাল জোনে কাজ করছি। সেন্ট্রাল জোন থেকে অর্ডার নিয়ে আমরা এখানে যে লোকাল রেস্টুরেন্ট আছে সেসব থেকে অর্ডার নিয়ে আমরা বাইরে জোনে যেতাম। তো তাতে আমাদের যত পার কিলোমিটার হিসাবে আমাদের আর্নিংটা বেশি হতো, কিন্তু আমরা যখন বাইরে জোনে যেতে পারছি না, তো এখানে নিজেদের জোনের ভিতরে অর্ডার মারছি আমরা, তো সাথে আর্নিংটা কিলোমিটার কম হচ্ছে, তাতে আর্নিংও কম হচ্ছে। তো আগে কি হতো, আমরা নিজের জোনেও অর্ডার করতাম এবং বাইরের জোনেও অর্ডার মারতে পারতাম। তো তাতে কি হতো, আমাদের আর্নিংটা একটা লেভেলে থাকতো। যেহেতু বাইরে আমাদের ট্রাভেল মানে করতে পারছি না, বা সুইগির সঙ্গে যে কোনো ঝামেলার কারণে বাইরের জোনগুলোতে ধর্মঘট আছে, সেজন্য আমাদেরকে যেতে দিচ্ছে না, বা এইসব কারণ মিলিয়ে আমাদের কাজের পরিধিটা খুব ছোট হয়ে গেছে। আর এই ছোটো কাজের পরিধি করে আমাদের তো পেট চলবে না। কি প্রবলেম ফেস করছেন যখন আপনি অন্য জায়গাতে যাচ্ছেন, আপনি নিজের জোনে ছাড়া অন্য জোনে যাচ্ছেন, তো কি প্রবলেমটা ফেস করছেন সেটা বলুন তো। দেখুন, শুরুতে এই অসুবিধাটা হচ্ছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে সেই সব অসুবিধা হচ্ছে না। বাইরের জন্য আমরা কাজ করতে গেলে সেখানে অনেক কিছু সমস্যার মানে সম্মুখীন হচ্ছিলাম। সেটা সুইগি ম্যানেজমেন্টের কাছে আমাদের এই সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম থেকে বা আপনাদের প্রেসের থেকে আমার কিছু মেসেজ মানে এটাই আমরা দিতে চাই যে ওনারা জানেন যে বাইরের জোনগুলোতে কি সমস্যা আছে, ঠিক আছে, ওনারা খুব ভালো করে জানেন। তো আমার কাছে এটাই মানে তাদের কাছে মানে মেসেজ যে সমস্যাটা আছে, আগে সমস্যা ছিল না, এখন তৈরি হয়েছে সমস্যাটা আছে, সেটা দ্রুত সমাধান করুন, ঠিক আছে। আমরা আবার কাজে ফিরে আসতে চাই। সুইগির সঙ্গে আমাদের খুব ভালো সম্পর্ক ছিল, সুইগির সঙ্গে আমাদের একটা রিলেশন ছিল,
সে রিলেশন আমরা বজায় রাখতে চাই। সেইটা তো আমি বুঝতে পারছি যে আপনি যে প্রবলেম ফেস করছেন আর নিজে জোনে অন্য জোনে গিয়ে, কিন্তু আপনি নিজে কোনো কমিউনিকেট করতে জিজ্ঞাসা করেছেন, চেষ্টা করেছেন কোম্পানির সঙ্গে হ্যাঁ। প্রবলেমটা ফেস করছি? অবশ্যই, company কি অবশ্যই। response দিচ্ছে? অবশ্যই ওরা রেসপন্স দেখেন, সুইগিতে আমরা যে রেসপন্স পাই ওটা অর্ডার ম্যানেজমেন্ট টিম টেলিকলারের থ্রু থেকে, ঠিক আছে, কোনো হায়ার ম্যানেজমেন্ট থেকে আমরা কোনো রেসপন্স এখনও পাইনি। ব্যাপারটা হচ্ছে টেলিকলাররা এটাই আমাদেরকে বলে যে ঠিক আছে আপনারা যখন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তো তখন আমরা এই অর্ডারটা আনঅ্যাসাইন করে দিচ্ছি, অর্ডারটা ক্যান্সেল করে দিচ্ছি, এইটুকুই বাস। সেটা আপনি এখনই কি আপনার মেন ডিমান্ডটা আছে যে সুইগি যা করছে ওটাকে সর্ট আউট করতে, যা হচ্ছে জোনে প্রবলেম হচ্ছে, বাস, বাস, ছেলেরা বাস। যা স্ট্রাইক করেছে ওরা আপনাকে অসুবিধা করছে যখন আপনি অন্য জোনে যাচ্ছেন না। আর ভাই সাহেব কোন আপনি हम लोग बोलने का मतलब ये है हाँ भाई, कि बोलिए। जैसे हम लोग जो दूसरा जोन में जा रहे हैं, हम लोग बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो स्विगी वाला से स्विगी से ही प्रॉब्लम बोलना चाह रहे हैं। जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए। हम लोग फिर से काम करना चाहते हैं, अच्छा से काम करना चाहते हैं और सही से काम करना चाहिए। ये प्रॉब्लम लेकर हम लोग कोई लड़का लोग काम नहीं करना चाहता है। अभी आप लोग जब जा रहे हैं कहीं तो आप लोग को क्या क्या चीज झेलना पड़ा इसके बारे में अरे हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ झेलना पड़ रहा है, हम लोग बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे खुल के बताइएगा। हैं। प्रॉब्लम इसलिए फेस कर रहे हैं, कुछ बंदा ऐसा है कि हम लोग रोक ले रहा है, बोला यहाँ पे स्ट्राइक चल रहा है, तुम लोग यहाँ क्यों आ रहे हो, तुम लोग एक बार वार्निंग दिया गया क्यों तुम लोग आ रहे हो। कोई बंदे का ऐसा किया है कि तुम लोग मना करने के बाद तुम लोग आ रहे हो। तो आदमी जो जा रहा है, आदमी स्विगी वाला का ही बोला कि वहाँ जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इसी कारण नहीं जाता। स्विगी वाला जो हेल्पलाइन है वो बोलता है कि आप वहाँ का कोई भी प्रॉब्लम होता है 100 डायल कीजिए, 100 डायल कीजिए। तो 100 डायल करने जब हमको जब 15 लड़का कहीं घेर लेगा तो उस टाइम मैं मोबाइल से कैसे निकालूंगा। अच्छा, वो कौन लड़के होते हैं जो आपको घेरते हैं? अब देखिए बहुत ज़्यादा स्विगी का डिलीवरी बॉय का भी लड़का लोग होता है, कोई सिविल ड्रेस में भी होता है। अब तो हम तो जानते नहीं हैं, यहाँ मेरे सब भाई लोग यहाँ सेंटर जोन में काम कर, हमको मालूम है कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है। वहाँ तो हम जाते नहीं, हम लोग खाली डिलीवरी देते दे के चले आते। अभी ऐसा हो गया कि हम लोग जाने का पहले हम लोग सोचते कि जाए या ना जाए। तो अभी जो लड़के आप लोगों को रोकते हैं उनसे आप लोगों को कोई बैर नहीं है, बस आप चाहते हैं कि वो किस्सा खत्म कर दे। हाँ, स्विगी का जो उन लोग जो चाह रहे हैं, स्विगी जो चाह रहे, जो लड़का लोग चाह रहे, जो स्ट्राइक जो किया है, जो उनका लड़का लोग, उन लोग को हम लोग यही चाह रहे हैं कि स्विगी जो वो लोग जो डिमांड मांग रहा है डिमांड को पूरा कर दे, तो हम लोग फिर अभी काम फीडबैक होकर काम कर सकते, फ्री माइंड होकर काम कर सकते हैं। अभी हम लोग डेली जो रात को हम लोग बहुत सारा लड़का लोग लेट नाइट काम करता है, लेट नाइट जो काम करता है, अभी बहुत सारा लड़का लेट नाइट काम करने के लिए दिन में ही काम करने के लिए डरता है, तो लेट नाइट कैसे काम करेगा। तो इसी की वजह से बताने का हम लोग बोल रहे हैं, मतलब ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए। সুইগিরও হচ্ছে, ঠিক আছে, আমরা চাই যে জিনিসটা এতে যে ক্ষতিটা হচ্ছে, ক্ষতিটা আমাদেরও যেরকম ক্ষতি হচ্ছে সুইগিরও সেম ক্ষতি হচ্ছে। তো আমরা চাই আমাদের দুজনের ক্ষতি আমরা দুজনে বসে একসঙ্গে, বা যারা বসতে চাইছে, আমাদের তো এতে কিছু মানে আমরা সামনে আসছি না বা আমরা বলছিও না কিছু। এই জিনিসটা সমস্যা যেটা আছে সেটা সমাধান দ্রুত করা হোক এবং এই জিনিসটা हाँ। मैं और भी लोगों से बात करूंगा, मैं और आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं पहले अपने व्यूअर्स को कुछ बताना चाहता हूं कि जिस तरह अभी स्विगी का मामला चल रहा है, आप लोग इससे बहुत अच्छे से वेल अवेयर हैं कि स्विगी के कलकत्ता के अलग अलग जोनों में स्विगी डिलीवरी बॉयज़ के साथ जो परेशानियां पेश आ रही हैं, किसी को पे आउट्स ढंग से नहीं मिल रहा है, इसलिए वो लोग स्ट्राइक करके रखे हुए हैं, और जो काम करना चाह रहे हैं वो उस जोन में अगर जाते हैं तो उन लोगों की वजह से उनको परेशानी होती है। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे। भैया आप क्या क्या परेशानियां हो रही है और इसको किस तरह से आप सॉर्ट आउट करने के लिए डिमांड कर रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है आदमी जो काम करता है दो पैसा के लिए करता है, तो जितने भी स्ट्राइक कर रहे हैं जितने भी जोन में वो लोग गलत में नहीं है, ठीक है। उन लोग जो स्विगी वालों को चाहिए कि उन लोग का जो वांड है, जो जायज़ वांड है, उसको पूरा करना चाहिए, ठीक है। और हम लोग का भी जायज़ वांड है कि हम लोग कर रहे काम, तो हम लोग कहीं जाए तो डिस्टर्ब हो रहा है। जब तक स्विगी वालों उन लोग का वांड पूरा नहीं करेगा तब तक हम लोग जाएंगे, तब तक हम लोग को डिस्टर्ब करेगा। तो स्विगी वालों को चाहिए कि उन लोग जो बात कर रहे थे जायज़ बात है, उनको पूरा कर देना चाहिए, ये कहने का मतलब तो है। वैसे तो सर क्योंकि देखिए अब तेल का दाम बढ़ गया है, पुलिस पकड़ लेती है तो 200 रुपया 300 रुपया पुलिस ले लेता है, ठीक है। अभी ऐसा ठंडा का टाइम में काम करने में बहुत दिक्कत होता है, आदमी अपना घर से नहीं निकल रहा है, और हम लोग मालूम रात में मालूम लेट नाइट तक काम कर रहे हैं। अभी स्विगी वाला क्या कर रहा है मालूम है कि सब जोन में स्ट्राइक चल रहा है, तो सोमवार का दिन 40 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है। अच्छा, क्यों दे रहा है? क्योंकि ना डिवाइड एंड रूल कर रहा है कि सब जगह स्ट्राइक है तो सेंटर वालों को ज़्यादा पैसा दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उन लोगों को चाहिए स्विगी वालों को सबको लेके काम करे, यही मेरा कहने का मतलब तो है। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आप लोग भी स्विगी के ही एम्प्लॉयज़ हैं जी। तो जो प्रॉब्लम वो जो अलग जो जोन के बॉयज़ फेस कर रहे हैं, क्या वो प्रॉब्लम आप लोग फेस नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम लोग भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हम लोग को दिन भर ऑर्डर नहीं मिल रहा है, एमजी बंद कर दे रहा है, ठीक है। हम लोग कोई भी बात अगर करते हैं तो लोग बोलता है कि मालूम है क्या, मालूम है कि हेल्पलाइन में बात करो, ठीक है, ठीक है। कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम होता है हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व होता ही नहीं है,
चाहे हम लोग सरहद बोस रोड जाए या मान सेक्टर 5 जाए, सिर्फ मान लो भाई हम लोग का ये काम नहीं है, हम लोग का ये जॉब नहीं है, आप यहाँ ये करो, डी कैप्टन फॉर्म भरो, करो, करते हैं, कोई काम होता नहीं है। तो प्रॉब्लम सबको है, ठीक है, हम लोग कर ले रहे हैं, बस कर ले रहे हैं, वरना प्रॉब्लम जितना सब सेंटर मजबूरी के तहत भी कह सकते जी जी, हैं, हाँ हाँ, जरूरी इसको है, हाँ काम नहीं करेंगे तो कहाँ बस, जाएगा? हाँ, बस यही बात कैसे चल रहा है, है हाँ ना? बस ये बात चल रहा है, वरना प्रॉब्लम हम लोग भी क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट नहीं आप कर लोगों को रहे, problem खाली हम लोग का कैसे हो सेंटर आज सब जो जोन को जो हम लोग को रोक रहे हैं वो खाली प्रॉब्लम नहीं है, सारा प्रॉब्लम जो सबको हो रहा है हम लोग को भी हो रहा है। आप थोड़ा इस ये तरफ आ पक्का जाओ। बात है ना ये भाई? सही है। ये जो स्विगी के बॉयज़ ने जो डिलीवरी बॉयज़ ने जो स्ट्राइक कर रखा है इतने दिनों से, उनकी बातें तो समझ में आती है कि उन लोगों को पे आउट नहीं दिया जा रहा है, और जो किलोमीटर में भी कुछ कटौती है, और कुछ लोगों का कहना है कि उसमें कुछ गंडगोल चल रहा है जिसकी वजह से वो लोग काम नहीं करना चाहते हैं। क्या कहते हैं आप, क्या इस मामले को आप इसमें देखते हैं, क्या बोले? देखिए, जैसे कि हमारे 2-3 भाई यहाँ पे जो इंटरव्यू दिए हैं उसी के ऊपर, उसी के बेस में मैं भी कहना चाहता हूँ। देखिए, जो स्ट्राइक करके बैठे हैं उन लोगों से हमारा पर्सनल कोई लेना देना नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं, कोई ज्यादा दुश्मनी उन लोग के साथ में हमारा है नहीं। हम लोग सेंट्रल जोन में काम करते हैं, और सेंट्रल जोन कोई छोटा नहीं है, सेंट्रल जोन बहुत बड़ा एरिया को लेके एक सेंट्रल, कहाँ तक पड़ता है आप थोड़ा देखिए बताइए। सेंट्रल जोन हमारा जो है, थोड़ा उसके कैमरे की तरफ आप जी, देखिए। सेंट्रल जोन जो हमारा होता है वो पार्क स्ट्रीट से लेकर और हेस्टिंग एरिया, और हेस्टिंग से लेकर आप यहाँ जाएंगे बालीगंज, फाड़ी, गड़िया हाट, इस तरफ जाएंगे तो तपसिया और साइंस सिटी, 95 ग्राम, बासंती हाईवे। अगर इस तरफ हम लोग डिलीवर्ड का एरिया देखेंगे तो हम लोग अगर इस तरफ डिलीवर्ड का एरिया देखेंगे तो डिलीवर्ड एरिया अपना हो रहा है नारायणपुर, कोयखाली, मध्यम ग्राम, यहाँ तक भी हम लोग डिलीवर्ड करने के लिए जा रहे हैं। बेसिकली अपना एरिया जो वो छोटा नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है। अब देखिए, स्विगी में क्या है कि कुछ जोन को डिवाइड किया गया है। जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक जोन हो गया राजारहाट, एक जोन हो गया आपका नागर बाजार, एक हो गया सॉल्ट लेक एरिया, ये एरिया लेक टाउन एरिया। तो जैसे उसके अंदर हमारा आता है सेंट्रल जोन। सेंट्रल और टेंगरा पहले अलग जोन था, अब क्या है कि सेंट्रल और टेंगरा जोन एक हो गया है, तो अभी इसको सेंट्रल जोन में ही लिया जा रहा है। अभी क्या है, देखिए अभी क्या है कि वहाँ का सॉल्ट लेक, राजारहाट, जशर रोड, बड़ा बाजार, ये सारा एरिया में, हाथी बागान एरिया, बड़ा बाजार एरिया, ये जोन में कुछ लड़के स्ट्राइक करे हुए हैं। उन लोगों का कुछ मांग है, कुछ डिमांड है कंपनी के सामने में। अगर और उसी के बीच में हम लोग यहाँ सेंट्रल में पीसफुल काम कर रहे हैं, तो हम लोग जब यहाँ से कोई ऑर्डर प्लेस उठाते हैं, जब ऑर्डर कुछ होता है यहाँ पे, ऑर्डर पिकअप करने के बाद में जब उस जोन के लिए हम लोग मूव कर रहे हैं, जोन के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे उन लोग जो बैठे हैं, जो वहाँ पे स्ट्राइक करके बैठे हैं, उन लोगों का एक डिमांड है कि भाई जब हम लोग स्ट्राइक करके बैठे हैं और आप लोग वहाँ से ऑर्डर लेके आ रहे हो और यहाँ पीसफुली डिलीवर्ड करोगे, तो हमारा जो स्ट्राइक करना वो पूरा बेकार हो जाएगा, पूरा उसमें कमज़ोर पड़ जाएगा, पानी फिर जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग सेंट्रल को बंद करो, सेंट्रल में स्ट्राइक करो, ऐसा उन लोगों का कहना है। और आप लोग वहाँ से ऑर्डर लेके यहाँ डिलीवर्ड मत करो। लेकिन हम लोगों का ये कहना है, हम लोग अपना सेंट्रल जोन को बंद नहीं करेंगे, ना ही स्ट्राइक करेंगे। हम लोग बार बार ये चीज़ को, स्विगी में हमारे जो मैनेजर साहब हैं उन लोगों से हमारा कम्युनिकेशन होता है, हम लोग बराबर बात करते हैं। उन लोगों को बोला जा रहा है कि सर आप लोग एक काम कीजिए, जिस एरिया में, जिस जोन में अभी ये जो प्रॉब्लम फेस हो रहा है, उस जोन को अभी आप लोग ब्लैक जोन कीजिए, वहाँ का ऑर्डर डिलीवर्ड ना करवाइए, ताकि सेंट्रल में, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेंट्रल बचा रहे, सेंट्रल काम करे, सेंट्रल में लॉगिंग हो, तो आप लोग पर्टिकुलर अगर आप एक जोन को बंद कर दोगे जहाँ जहाँ लड़का स्ट्राइक किया हुआ है, तो आप कंपनी का उसमें कोई भारी नुकसान, ये मैं नहीं बता पाऊंगा कि कंपनी का क्या नुकसान क्या फ़ायदा। लेकिन जो लड़के यहाँ से, जो बंदे जा रहे हैं, जो वहाँ पे जाने के बाद जो प्रॉब्लम फेस हो रहा है, कुछ तो ऐसा हो गया कि लड़के के साथ में किसी का आर्गूमेंट हो गया, हुज्जत हो गया। अब कि सबका तो दिमाग एक जैसा नहीं है। यहाँ से जो लड़का जा रहा है, अब अगर हम जाते हैं वहाँ पे, मेरे को कोई पकड़ता है, मेरे को अगर कोई बोलता है कि आप ऑर्डर लेकर आ रहे हो यहाँ पे, तो हम उसको बोलेंगे चलो बाबू आ गए हैं, आप लोग का स्ट्राइक चल रहा है, पता नहीं था, चलो ये ऑर्डर दे देते, उसके बाद नहीं आएंगे। लेकिन हो सकता है कि मेरे जगह में कोई और बंदा जाए, जो उससे उसका मुठभेड़ हो जाए, जो उससे आर्गूमेंट हो जाए। ऐसा भी हो रहा है। ये चीज़ हम लोग बार बार ऑफिस में मैनेजरों को बता चुके हैं। क्या रिस्पॉन्स आता है जब आप बताते हैं तो? देखिए, रिस्पॉन्स के नाम पे ये आता है कि उन लोग से बात हो रहा है, उन लोग के साथ में बैठना है, उन लोग के साथ में मीटिंग हो रहा है, लेकिन हम लोग भी अपडेट लेते रहते हैं। सोल्यूशन कुछ दे रहे हैं? सॉल्यूशन हमको सॉल्यूशन कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ जो हमारे मैनेजर बैठे हैं, इनसे ऊपर में भी ऑथोरिटी, हाई ऑथोरिटी में कोई मैनेजर है, मुझे ऐसा लगता है कि उन तक बात नहीं पहुँच रहा है कहीं ना कहीं। तो
आज यहाँ पे हम लोगों का आप इकट्ठा हमारे चैनल के माध्यम से आज- अपने हायर अथॉरिटी आज हम लोगों को यहाँ पे इकट्ठा होकर और एक बात ही बोलना पड़ रहा है कि मैं चाहता हूँ, हम लोग सब चाहते हैं कि स्विगी का हाई अथॉरिटी मैनेजर जो है ये आवाज़, ये बात उन तक पहुँचे और वो इस चीज़ को गौर करे, इस चीज़ पे ध्यान दे। और क्या बाकी जोन के लड़कियों का, जो डिलीवरी पर्सन का, जो डिलीवरी पार्टनर का जो मांगे, जो भी डिमांड है, वो आपस में बैठ के शॉर्ट आउट करे। कंपनी को बैठ के, अगर उन लोग के साथ में बैठ के शॉर्ट आउट करे, अगर शॉर्ट आउट हो जाता है, हम लोग कल भी काम कर रहे थे, आज भी काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि हम लोग सेंट्रल को बंद करना है, स्ट्राइक करना है, ये लड़का काम नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हर कोई अपना पेट के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने सेफ्टी के लिए कहीं भी जाएगा डिलीवर करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपस में ही लड़े, आपस में ही मार खा के वापस आए और हम लोग जिसको सुनाना है वहाँ तक आवाज़ पहुँचाएँ और वहाँ उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकले। तो हम ये खास करके आपके चैनल के माध्यम से ये जानना, ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं अपने स्विगी बंडल, अपने हाई अथॉरिटी तक, जो हाई ऊपर लेवल में जो मैनेजर साहब बैठे, ये वो सुने और वो कोई एक्शन में आए। एक्शन में आए। एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, किस जोन के लड़कों ने अभी स्ट्राइक कर रखा है, ये आप थोड़ा खुल के बताएं तो। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, सॉल्ट लेक जोन ये 4-5 दिन से है। उसके बाद में वहाँ से नागर बाज़ार, राजरहाट, हाथी बागान, साउथ दमदम, नागर बाज़ार, साउथ दमदम आज हो गया है। उसके बाद वहाँ से अब चला है खिदुरपुर जोन बंद हो गया, बेहाला पन्नसरी बंद हो गया। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, बेहाला पन्नसरी का एक फेसबुक में वीडियो वायरल हुआ था, वहाँ के लड़कों ने भी स्ट्राइक कर रखा है। तो ये सारा जोन आज स्ट्राइक के पूरे वे में चल रहा है। अभी भी मैं आपको फिर दोबारा बोलना चाहता हूँ, अभी भी सेंट्रल जोन और टेंगरा कभी भी अभी स्ट्राइक में नहीं है, स्ट्राइक में नहीं। लेकिन अगर इसी तरह अपने बंदे वहाँ जाते रहें और मार खा के आते रहें और ऐसे मुठभेड़ करना हो, तो मजबूरन हम लोग स्ट्राइक तो नहीं करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, अपना पेट मारते हुए, अपने आप को नहीं खा के भूखा रखते हुए हम लोग अपना डिवाइस को लॉग आउट करके घर में बैठ के रहेंगे, लॉगिंग करके, और मार खाने नहीं जाएंगे। आप देख रहे थे और सुन रहे थे डिलीवरी बॉयज़ को, जो कि किस तरह की परेशानियां झेल रहे हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि कलकत्ता के कई ऐसे जोन हैं जहां के डिलीवरी बॉयज़ ने स्ट्राइक कर रखा है। वो क्यों कर रखा है, वजह मैं आपको फिर से बता देता हूं। वजह है पे आउट की वजह से, क्योंकि उन लोगों की कोई फिक्स सैलरी नहीं होती। कई जोन के लड़कों फिक्स सैलरी पे काम नहीं करते, कमीशन पे काम करते हैं, और कमीशन बेस पे उनको उस तरह का पे आउट नहीं मिलता है जिसकी वजह से वो अपना घर चला पाएँ, अपने आप का एक्सपेंस मेंटेन कर पाए। जिसकी वजह से कई जोन के लड़कों ने स्ट्राइक किया है। ये डिमांड कर रखी है स्विगी कंपनी से कि उनके प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाए, वो जो उनकी डिमांड्स है उसको लुक आफ्टर किया जाए, उस पर कोई ऑथेंटिक डिसीजन लिया जाए ताकि उस चीज़ का मसला का हल निकले। लेकिन अभी मैं जहां मौजूद हूं, इन डिलीवरी बॉयज़ का मसला कुछ अलग है। इनका ये कहना है कि जिन लड़कों ने स्ट्राइक कर रखा है पहले से, उनके जोन में जब ये डिलीवरी करने के लिए जाते हैं तो उनको तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसमें क्या हो रहा है, डिवाइड एंड रूल टाइप का कोई सीन देखने को मिलता है। अपने ही लोगों के सामने, एक दूसरे के सामने ये लोग भीड़ पड़ते हैं, क्योंकि हर किसी की जहनत अलग होती है, मिजाज अलग होता है, मूड अलग होता है। ये लोग जाते हैं पीसफुली डिलीवरी करने, वहाँ के लोगों को कहना है कि जब हमने स्ट्राइक कर रखा है तो आप क्यों काम करते हैं। अब बात यहाँ पर ये पैदा होती है, सवाल यहाँ ये उठता है कि जिनको मजबूरी है, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो कहाँ जाएंगे, वो स्ट्राइक कैसे कर सकते हैं। उनको हर दिन कमाना है, हर दिन खाना है, वो काम करेंगे ही करेंगे, वो रुक नहीं सकते। इस मजबूरी के तहत वो लोग काम करने जाते हैं और वहाँ उनको कभी मार खाना पड़ता है, कभी चीज़ें तोड़ दी जाती हैं, और कभी जब ये कंपनी से बात करते हैं तो कंपनी कहती है कि आप 100 नंबर पर डायल करें। लेकिन इनका ये कहना है कि जब आपको 15 लड़के घेर लेंगे तो आप किसको कॉल करेंगे, कि आपका सेंस उस वक्त काम करेगा कि आप वहाँ पर किसी को कॉल कर पाएँ। तो इनका ये कहना है, सिंपल इज डैट। इन शॉर्ट मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इनका ये कहना है कि जो भी लड़कों ने स्ट्राइक किया है उनके डिमांड्स को पूरी कर दी जाए, ताकि जब ये काम पे निकले तो इनको किसी तरह की परेशानी ना देखनी पड़े, ना झेलनी पड़े, और जो उनके खुद के कलीग्स हैं स्विगी डिलीवरी बॉयज़, उनके साथ इनकी भिड़ंत ना हो। एक अपील द लोकल जर्नलिस्ट आपसे एक करना चाहेगी। स्विगी कंपनी जो कि खाना पहुँचाती है, हर जगह ऑर्डर्स लेती हैं, इनके वजह से लेती हैं। स्विगी कंपनी अपने ऐड, अपने प्रमोशन के वजह से स्विगी कंपनी नहीं बनी। स्विगी कंपनी बनी है इन लोगों की वजह से जो आप मेरे पीछे खड़े देख रहे हैं, जो ऑर्डर लेते हैं, ग्राउंड ज़ीरो पे काम करते हैं, कभी धूप की तपिश में, कभी ठंड की कनकनाहट में, और कभी बारिश में भीग करके हर जगह खाना पहुंचाते हैं।
और ये जिम्मेदारी सिर्फ द लोकल जर्नलिस्ट के लोगों की नहीं है कि ये बात दूर तक पहुँचे, या इनकी नहीं है कि ये बात दूर तक पहुँचे। ये जिम्मेदारी उन लोगों की भी है जो खाना ऑर्डर करते हैं और फेसबुक में पोस्ट करते हैं कि प्लीज़ रिस्पेक्ट दोज डिलीवरी बॉयज़। ह्यूमैनिटी के नाम पे किया जाता है ना, किया जाता है रिस्पेक्ट डिलीवरी बॉयज़। इस बात पे किया जाता है कि ये लोग इतनी मेहनत करके आते हैं, लेकिन वो लोग इनकी आवाज़ सुन रहे हैं। अगर आप सुन रहे हैं अभी तो इस वीडियो को शेयर करना शुरू करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इनकी आवाज़ दूर तक पहुंचे, प्रॉब्लम ख़त्म हो। जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं, सबकी है। बहरहाल द लोकल जर्नलिस्ट की टीम इससे जुड़ी हुई खबरें आपको और दिखाएगी। हम आपकी आवाज़ बनते हैं, आप हमारी आवाज़ बनिए। द लोकल जर्नलिस्ट फिर से जुड़ेगी आपके साथ, दिखाती रहेगी ताज़ा और सच्ची खबरें। जब तक के लिए नाजिश फराज को दे इजाज़त और देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। धन्यवाद।